Hi guys, welcome to WeCommerce. Welcome and Merry Christmas to all of you. Guys, if you haven't subscribed to our channel yet, please go ahead and subscribe to our channel. Hit the like button and share it with all your friends. This is our Telegram group, guys. This group is just for you. You will get all the instant updates that which teacher is going to come at what time and what are they going to teach, right? So the link is there in the description box just below my video. Go ahead and join, guys. Let me tell you something about our pro subscription that is going on at Vedantu right now. सबसे पहले बता दूं 50% ऑफ चल रहा है for a limited period of time. Let me tell you the advantages of it. You get 5,000 plus hours of live online teaching, right? Not a recorded video, but live videos. ठीक है, teachers will come, solve all your doubts, and everything is very, very good. You get test assignments with 10,000 plus questions. In YouTube, what do? We give you questions, but solutions, what are the solution for it? For that, you need to take a pro subscription. We give you lots and lots of practice for all the 4 subjects in commerce, guys. Accountancy hai, business studies hai, economics hai, maths hai. So much practice questions, and we give you continuous review on your areas of improvement, which areas you're lagging behind a bit. We tell you that so that last mein report card ka wait na karna pade. In commerce, guys, we have a pool of 20 plus teachers, so go ahead and learn from their experience. You have the option to take batches in English or in Hindi according to your board of studies. Then when you take the pro subscription, guys, so whatever micro courses means chapter wise courses are going on, आप उसमें automatically subscribe हो जाते हो. And the crash courses which we have started, उसमें भी आप subscribe हो जाते हो. So guys, the original amount is 3,499 for 1 month and 10,000 for 3 months. That is the actual price. But right now, discount is 50%. Right? You will get around 1,800 for a month for 4 subjects and 5,000 for 4 subjects 3 months. Where else can you get such a offer, guys? So this is the coupon code for your 50% off. The link is there in the description box. You go on the link, put I have a coupon code. NR Pro is your coupon code, right? When you apply this, you get 50% off. Okay, guys? So welcome class 12th. आज तो छुट्टी है, right? I hope winter break अच्छी चल रही है आप लोगों की. So we were doing the unit determination of income and employment, right? Today we will be taking lectures on your excess and deficit demand. ठीक है, आज हम कवर करने वाले हैं हमारा एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड कि क्या होता है एंड व्हाट आर द रेमेडीज. इकोनॉमिक्स है, रेमेडीज तो हमें बताना ही पड़ेगा गाइस, राइट? सो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? We will learn about excess demand and all the related concepts. Then deficit demand and its related concepts. That what are the measures, remedies हम क्या ले सकते हैं. पहले तो ये क्या होता है and then what can be done about it. So guys, this is all the amalgamation of the previous chapters. हमने aggregate demand पढ़ा था. You remember aggregate demand and supply. Aggregate demand क्या था हमारा क्या 4 सेक्टर्स थे हमारे, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड योर नेट ऑफ इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स, राइट? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. दीज वर योर अग्रीगेट डिमांड. अब ये एक्सेस हो रहा है, एक्सेस डिमांड, ये डेफिशिट हो रहा है, कम हो रहा है, डेफिशिट डिमांड. सो व्हाट विल बी द रीजंस? यही 4 रीजंस हैं और क्या रीजंस हैं, राइट? इसी से बनते हैं. तो लेट्स सी, लेट्स बिगिन गाइस. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द मीनिंग ऑफ आवर एक्सेस डिमांड. नाउ
In an economy, excess aggregate demand exceeds your aggregate supply. क्या हो रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? Aggregate demand, your AD, is exceeding your aggregate supply. मतलब AD is more than AS. Right? So this situation is known as your excess demand. ठीक है? Excess of demand, क्योंकि आपकी aggregate demand ज़्यादा है as usual. Now the gap that is there between your demand and aggregate demand. तो inflationary gap is the gap showing excess of current aggregate demand, जो आपकी current aggregate demand है, over the aggregate supply at a level of full employment. सो इन दोनों का जो बीच का गैप हो जाएगा आपके अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई के बीच में, ये जो एक्सेस डिमांड है, दिस इज क्रिएटेड, दिस इज नोन एज योर इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है? सो at full level of employment, it is called inflationary. Why it is called inflationary? Because it leads to inflation, that is continuous rise in your prices. Okay, now this is the inflationary gap we are talking about. हमारी aggregate supply वाली लाइन क्या है बेटा? ये है ना 45 डिग्री वाली लाइन, कीनेसियन थ्योरी हमारी. दिस इज योर aggregate supply. अग्रीगेट डिमांड जो होना चाहिए AD, राइट? AD 0. नाउ A पॉइंट इज योर इक्विलिब्रियम. ठीक है? मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. बट अब क्या हो गया? अग्रीगेट डिमांड ऊपर चला गया. अग्रीगेट डिमांड इज मोर देन योर अग्रीगेट सप्लाई. क्या हो रहा है? AD 1 क्रिएट हो गया. ठीक? पॉइंट B बन रहा है. सो द गैप बिटवीन द पॉइंट A एंड B, दिस एक्सेस ऑफ योर डिमांड इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है? So let us suppose that an imaginary economy, by employing all its available resources, can produce 10,000 quintals of rice. ठीक है? मतलब हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं. ये हमारी अग्रीगेट सप्लाई हो गई. इफ अग्रीगेट डिमांड ऑफ राइस से 12,000 क्विंटल्स, ठीक, मतलब aggregate demand कितना हो गया? 12,000. It is not matching up with your aggregate supply. This demand will be called as an excess demand because aggregate supply at the level of full employment of resources is only 10,000 and the resulting gap of 2,000 quintals, क्या हम टर्म करेंगे? A और B के बीच का डिफरेंस. This is your inflationary gap. ठीक है? Now, in the above diagram, inflationary gap is AB because full employment is at Y, right? Aggregate demand BY is greater than aggregate supply AY. ठीक है? So this is your inflationary gap. Questions come आपको लिखने के लिए थ्योरी क्वेश्चंस की एक्सेस डिमांड डिफाइन करो या फिर इन्फ्लेशनरी गैप डिफाइन करो, डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. तो आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है. ठीक है? नाउ व्हाट आर द रीजंस गाइस हमारी एक्सेस डिमांड के लिए? डिमांड क्यों बढ़ रही है? ठीक है? मतलब इकोनॉमी में डिमांड क्यों बढ़ रही है? ठीक, तो उसकी रीजंस. अब अग्रीगेट डिमांड क्या होता है बेटा? अग्रीगेट डिमांड अभी मैंने बताया आपको, कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड्स, investment of business, government spending, plus your excess of exports over imports. ठीक है? तो मतलब यही बढ़ रहे होंगे, यही है हमारे सारे के सारे कल्प्रिट्स, है ना? इतना कुछ एक्स्ट्रा हमें लर्न करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. वी कैन डिराइव एवरीथिंग विथ लॉजिक. ठीक है? लॉजिक से चलेंगे. ना पहले आते हैं हाउस होल्ड्स पे. सी, इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन. क्या किया?
हाउस होल्ड ने क्या किया, कंजम्पशन बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो हमने पढ़ी थी वो बढ़ गई, प्रोपेंसिटी टू सेव कम हो गई, सेविंग्स कम कर रहे हैं, खर्चा बढ़ा रहे हैं, तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, राइट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। नाउ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये हमारा आई आ गया यहाँ पे, पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर इन द इकोनॉमी। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है बैंक, उधारी बहुत मिल रही है, राइट, फेवरेबल क्रेडिट कंडीशंस आर देयर इन द इकोनॉमी। तो क्या होगा, पीपल स्टार्टेड, लोन ले लो, बिजनेस लगा दो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, राइट, सो अग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ गई। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पब्लिक या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जी पे आ जाते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, ऑन विच थिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, और क्या बढ़ा सकता है, वट एवर कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, या फिर डिफेंस में ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट की आपकी स्पेंडिंग ऑन वेरियस सेक्टर्स हैव इंक्रीज्ड, दैट इज क्रिएटेड एन अग्रीगेट डिमांड का एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, ये बढ़ गया, एक्स बढ़ गया, एक्सपोर्ट्स, हम ज्यादा प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, एक्सपोर्ट्स मतलब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं गुड्स बना के, राइट, सो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन योर एक्सपोर्ट डिमांड। इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। क्या हो रहा है, मनी सप्लाई बढ़ गया है इकोनॉमी में, डिस्पोजेबल इनकम हमारी इकोनॉमी में क्या है, ज्यादा है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, द इनकम विच इज देयर विद द कंज्यूमर हाउस होल्ड्स फॉर कंजम्पशन। ठीक है, उनके पास ज्यादा पैसे बचेंगे तो वो ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, टैक्सेस बढ़ा सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम कम करने के लिए। मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में, बैंक्स को क्या कर सकते हैं, थोड़ा डरा धमका सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमारे फिस्कल मेजर्स में टैक्सेस आ जाएगा, मॉनेटरी मेजर्स में क्वांटिटेटिव पढ़ा था, क्वालिटेटिव पढ़ा था। ठीक है, ऑल दोज मेजर्स इन मॉनेटरी पॉलिसी, प्लीज रेफर टू द वीडियो हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी पे बनाया था, यू विल गेट एवरीथिंग देयर। ठीक है, कि हम क्या क्या करते हैं बैंक के। ओके, सो मनी सप्लाई क्या करना है, बढ़ गया है, राइट, सो बिजनेस क्या कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दीज आर योर रीजंस, यही 4 रीजंस है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट गाइस। ठीक है, इम्पैक्ट हम देखते हैं, जनरल प्राइस लेवल हमारा राइज होएगा। क्या हो रहा है, राइज इन योर जनरल प्राइस लेवल, डिमांड इज मोर, राइट, डिमांड जब बढ़ती है बच्चे और सप्लाई नहीं बढ़ रही है, क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल विल इंक्रीज इन एन इकोनॉमी, तभी तो इसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, है ना। इफेक्ट ऑन योर आउटपुट, मतलब जो प्रोडक्शन है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, अग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, देयर वोंट बी एनी इम्पैक्ट बिकॉज द इकोनॉमी इज एट ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। हमने क्या बोला था, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जाते हैं तो अग्रीगेट डिमांड बड़ा वाला होता है, एक्सेस ऑफ योर अग्रीगेट डिमांड। तो पहले ही आपकी अग्रीगेट डिमांड जो है, हमारी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट क्या है, फुली एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब आप डिमांड बढ़ा रहे हो उसके ऊपर, राइट, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो क्या इकोनॉमी हमारी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकती है, नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो इफेक्ट ऑन आउटपुट इज नो इफेक्ट। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या इफेक्ट आएगा, नो चेंज इन योर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्यों, ऑलरेडी फुल है, हमने क्या बोला था, ऑलरेडी हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, उसके ऊपर हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, देयर इज नो पर्सन इन द इकोनॉमी हु इज वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड,
राइट, ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट फुल है इकॉनमी। नाउ व्हाट आर द मेजर्स दैट वी कैन टेक टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ डिमांड। ठीक, अभी आपने एक्सेस डिमांड पढ़ा, उसको कैसे कंट्रोल में लाना। ठीक है, इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, उसको कैसे कंट्रोल में लाएंगे। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलिसी गाइस। फर्स्ट, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो मनी से थोड़ा रिलेटेड है। सेकेंड इज योर फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, लेट्स सी देम वन बाय वन। मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ monetary policy guys is the policy of central bank of the country to control what? Central bank क्या control करता है? Money supply in an economy it is controlling. ठीक है, मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि इकोनॉमी में कितना क्रेडिट है आपको प्रोडक्शन करने के लिए अवेलेबल है, लोन दे रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारा आरबीआई, सेंट्रल बैंक जो है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्या क्या टूल्स हैं अब इसके पास कंट्रोलिंग के? इट इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स और एक क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स से रिलेटेड, जो हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के जनरल टूल्स आर, पहले अभी क्या चल रहा है बेटा, एक्सेस ऑफ डिमांड, इसको करना है कंट्रोल। बहुत डिमांड कर रही है इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा गुड्स बन रहे हैं इकोनॉमी में। ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं कैसे कंट्रोल करना। पहले, इंक्रीज इन योर बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है गाइस? बैंक रेट होता है हमारा रेट एट विच द सेंट्रल बैंक इज गिविंग लोन या फिर गिविंग मनी सप्लाई टू योर कमर्शियल बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे होता है। ठीक है, तो अगर सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, हमारा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सेंट्रल बैंक इज गिविंग यू मनी एट अ हायर परसेंटेज कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक क्या करेगा? आपको हायर रेट देगा, है ना, इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाने वाली है। बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स क्या बोलेंगे? बोलेंगे ठीक है, अभी नहीं करना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, इतना इंटरेस्ट रेट कौन पे करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, increase your repo rate. Repo rate is again a type of rate at which central bank gives money to the commercial bank for short term. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट रेपो रेट इज जस्ट बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए मनी देता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म का। तो सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक को इट इज गिविंग मनी फॉर शॉर्ट टर्म, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। सेम इफेक्ट, अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी दे रहा है तो कमर्शियल बैंक भी आपको, इन्वेस्टर्स को हायर रेट देगा। हायर रेट इज ऑलवेज मोरल डाउन करने वाला थिंग फॉर इन्वेस्टर्स, कि यार इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो मुझे प्रोडक्शन नहीं करना, राइट। इंक्रीज इन योर रिवर्स रेपो रेट, दिस इज अगेन अ टूल। ठीक, मतलब कि जिस रेट पे आपका कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसे रख रहा है वो बढ़ा दो। ठीक, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक के पास बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर आया है कि आरबीआई के पास मनी रख दो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक, तो वो क्या करेगा, उसके जितने एक्सेस फंड्स हैं, राइट, एक्सेस फंड्स को क्या करेगा, वो आरबीआई को दे देगा कि ये लो मुझे इंटरेस्ट दे देना हायर। अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसे हो गए कम तो आपको तो वो देगा नहीं, वो अपना पूरे पैसे उसने कहाँ रख दिए, आरबीआई के पास रख दिए। इंक्रीज इन योर रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इंक्रीज इन योर CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो इज अ रेशो गाइज जो आपके कमर्शियल बैंक को
आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। जो उसके मनी एंड डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स होते हैं उस पे सम परसेंटेज, इट कैनॉट लोन आउट एवरीथिंग। हमने वो डिस्कस किया था माई मॉनेटरी पॉलिसीज पे, डिटेल डिस्कशन इज देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी वाले वीडियो गाइस, ठीक है। सो गो अहेड एंड वॉच दैट ऑल्सो फॉर डिटेल्ड थिंग्स। अब इंक्रीज इन योर CRR, क्या हो रहा है इंक्रीज ऑफ CRR? रेट मतलब ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मनी योर कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विथ RBI। जितने इसके पास डिपॉजिट आए हैं कमर्शियल बैंक के पास, उसका परसेंटेज होता है जो RBI के पास रखना कंपल्सरी होता है। अगर ये रेट बढ़ गया, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मनी यू हैव टू कीप विथ RBI, मतलब कमर्शियल बैंक्स लोन कम देंगे, ठीक है। इंक्रीज इन योर SLR इज योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। SLR दिस इज कि कमर्शियल बैंक्स को अगेन जो आपके डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होती हैं उसका सम परसेंटेज इट हैज टू कीप विथ देमसेल्व्स ऑल्सो, ठीक है। पूरे के पूरे पैसे लोन में नहीं दे सकते। क्यों? आप आते हो ना बैंक से पैसे निकालने, आपकी डिमांड्स मीट करने के लिए कुछ लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी, तो दिस इज दैट अमाउंट। अगर ये RBI ने इंक्रीज कर दिया कि भाई ज़्यादा परसेंटेज खुद के पास रखना है, यू नीड नॉट लोन आउट एवरीथिंग। अगर 100 रुपीज़ आया है, SLR मैंने बोल दिया कि 30 है, मतलब यू कैन लोन आउट ओनली 70। कम कर दिया आपने, पब्लिक के पास जो लोन जा रहा है आपने कम कर दिया बाय इंक्रीज इन योर SLR। So these are your general tool that are available with RBI, ठीक है। मतलब अग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए, एक्सेस डिमांड को कम करने के, राइट। नेक्स्ट कम्स क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये भी RBI कर रहा है, बट ये हम सिलेक्टिव टूल्स बोलते हैं। कैसे? इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योर्ड लोन्स, इसको इंक्रीज कर दो मार्जिन। मार्जिन गाइस क्या होता है? मार्जिन हमने डिस्कस किया था, होता है कि जैसे आपने मुझे क्या रखा, आपने मेरे पास लैंड रखा, ठीक है। यू नीड टू गिव मी सम पेपर्स जो मैं आपको जिस पे लोन दूंगी। अब लैंड की एक्चुअल वैल्यू जो है वो सपोज 1 करोड़ है, ठीक है। मैं बोलूँगी मेरा मार्जिन है, मैं मार्जिन अपना मैं सिर्फ 80% ही लोन दूंगी, मतलब 1 करोड़ की तुम मुझे पेपर्स रखो, आई विल गिव यू ओनली 80 लाख रुपीज। मार्जिन क्या किया मैंने? बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या करेगा? डिमोटिवेट हो जाएगा हमारा इन्वेस्टर, बोलेगा यार मैं तो 1 करोड़ की लैंड दे रहा हूँ, मतलब पेपर्स दे रहा हूँ आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा लोन तो बनता है, आप सिर्फ 80 लाख का लोन दे रहे हो, राइट। मार्जिन अगर बढ़ा दिया RBI ने तो मतलब लोन गिविंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक हैज कम डाउन, राइट। मॉरल सुएशन हमने देखा था क्या होता है, थोड़ा डराना धमकाना बातें, लेटर स्पीचेस RBI लिख रहा है कि भाई थोड़ा कम पैसा बांटो इकोनॉमी में, एक्सेस हो रहा है मनी, प्लीज लिमिट योर थिंग्स, ठीक। मॉरल सुएशन। इंट्रोड्यूस क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग मतलब किधर पे कौन से सेक्टर पे देना है पैसा, दैट RBI इज डिसाइडिंग नाउ कि ओके इंफ्रा पे आप लोन नहीं दोगे, अब डो नॉट गिव लोन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एनी मोर, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे भी हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को आप अब लोन नहीं दोगे, तो क्या कर रहे हो आप? क्रेडिट रैशनिंग, किसको देना है किसको नहीं देना है, दैट RBI इज टेलिंग कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ना व्हाट आर द फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल मेजर्स जो होते हैं, सो द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी टेकन बाय द जनरल गवर्नमेंट to accomplish desired goals is known as your fiscal policy.
सो अब इससे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ डिमांड कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, अब कैसे करेंगे, इंक्रीज योर टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट न्यू टैक्सेस ले आए, क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम हमारी कंज्यूमर्स के पास, हाउस होल्ड्स के पास कम हो जाएगी, इन्वेस्टर्स के पास, बिजनेस वाले कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, तो खर्चा थोड़ा कम करेंगे, राइट, डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ओनली। गवर्नमेंट बहुत ह्यूज स्पेंडिंग करती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हॉस्पिटल्स पे, इस पे उस पे, कितनी सारी हमारी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, डिफेंस पे करती है। अब क्या करना है, एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल कर लो, खर्चा मत करो, डू नॉट क्रिएट डिमांड। हमारा अग्रीगेट डिमांड का अगेन प्लीज लुक एट इट, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो क्या करना है हमारे जी को बोलना है कि प्लीज एक्सपेंडिचर थोड़ा कम कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इधर पे उधर पे कम करो। इंक्रीज पब्लिक बोरोइंग या फिर पब्लिक डेट आपका बढ़ा दो। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस डूइंग, ये क्या कर सकते हैं हम पब्लिक का डिपॉजिट्स जो होते हैं, गवर्नमेंट को बोलेंगे कि आप ले लो मनी, ठीक है, आप बॉन्ड्स इश्यू करो, क्या इश्यू करो, बॉन्ड्स इश्यू करो एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो भी। तो क्या करोगे आप, पब्लिक से बोरो कर लोगे मनी, पब्लिक के पास क्या होगा, मनी बचेगा ही नहीं, पब्लिक ने आपको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया पैसे फॉर अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने क्या किया, इकोनॉमी से पैसा ले लिया वापस। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू डेफिशिट डिमांड गाइस। ठीक, ऑपोजिट ऑफ योर एक्सेस डिमांड। Now, in an economy, aggregate demand falls short of your aggregate supply at full level of employment. Full level of employment में क्या हो रहा है, कमी रह गई है थोड़ा सा, aggregate supply ज़्यादा है, aggregate demand is less than your aggregate supply. Now, this is known as deficit demand. अब deflationary gap is the gap showing deficit of current aggregate demand over aggregate supply at the level of full employment. जो गैप बना हमारा, जो हमारा डेफिशिट डिमांड है और अग्रीगेट डिमांड के बीच का जो गैप हो गया है, वो क्या है, डिफ्लेशनरी गैप। Why it is called deflationary gap? Because it leads to deflation. Deflation क्या होता है, continuously fall in your prices. डिमांड है ही नहीं लोगों के पास, सप्लाई हो रही है, क्या होगा, प्राइजेस ड्रॉप हो जाएंगे, राइट। नाउ इमेजिनरी इकोनॉमी अगेन, एम्प्लॉइंग ऑल इट्स अवेलेबल रिसोर्सेस। हम कितना प्रोडक्शन कर दिया हमने, सप्लाई कितनी है, 10,000 क्विंटल्स ऑफ राइस, अग्रीगेट डिमांड कितनी आई, सिर्फ 8,000 आई बेटा। ठीक है, कितना कम रह गया, 2,000 quintals will be called as your deflationary gap. Aggregate demand and aggregate supply are not equal. Equal होना चाहिए equilibrium पे, है ना, equal नहीं है, aggregate demand is less than your aggregate supply here. So this is called as deflationary gap. So this is your aggregate supply AS, ठीक है, हमारा अग्रीगेट डिमांड कहाँ है, दिस इज आर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये होना चाहिए बट है कितना, दिस गैप आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, दिस गैप इज नोन एज योर डिफ्लेशनरी गैप, गैप बिटवीन योर जितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम लेवल पे एंड व्हाट इज एक्चुअली देयर, लिटिल लेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम।
सो व्हाट आर द रीजंस अगेन? क्या हो रहा है? हम वापस से वहीं पे आ रहे हैं, अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? अग्रीगेट डिमांड क्या है बेटा? कम है। इसके रीजंस यही 4 हैं, राइट? अब इनके रीजंस देखते हैं क्या हो सकता है। डिक्रीज इन योर हाउस होल्ड कंजम्पशन, ये डिक्रीज हो गया, राइट? क्यों? फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेविंग्स बढ़ा दी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम कर दिया। नेक्स्ट, डिक्रीज इन योर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये वाला पोर्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्यों? क्रेडिट फैसिलिटी, बैंक ने क्या किया? रैशनिंग कर दिया था, क्रेडिट नहीं दे रहा है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गया। कम हो गया तो अग्रीगेट डिमांड विल कम डाउन। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इतना मनी स्पेंड नहीं कर रही है, इस पे आ जाओ जी। व्हाट इज इट डूइंग? गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग इनफ, अग्रीगेट डिमांड नीचे आ गया। डिक्रीज इन योर एक्सपोर्ट्स, एक्स कम हो गया तो एडी कम हो गया, राइट? अग्रीगेट डिमांड हैज कम डाउन। डिक्रीज इन मनी सप्लाई और डिस्पोजेबल इनकम, मतलब सी के पास पैसे कम बच गए, है ना? डिस्पोजेबल इनकम, टैक्सेस वगैरह शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, न्यू टैक्सेस आ गए, तो क्या हो गया? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी हैज़ कम डाउन और डिस्पोजेबल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर हैज़ कम डाउन। परचेजिंग पावर ही कम हो गई तो अग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा बेटा? इट विल कम डाउन ऑटोमेटिकली। ठीक है, now let's see its impact. Fall in the general price level, aggregate demand is less than aggregate supply। aggregate demand क्या हो गई? कम हो गई। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, प्राइस क्या हो जाएगा बेटा? जनरल लेवल विल बी डाउन, डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशन आएगा इकोनॉमी में। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन द प्लान्ड आउटपुट। ठीक है, अब इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अब क्या हो रहा है? अग्रीगेट डिमांड कम है, राइट? सो नेक्स्ट फेज में सप्लायर्स क्या करने वाले? उतना ही सप्लाई करेंगे क्या? नहीं, क्या प्लान करेंगे? प्लान्ड आउटपुट हम नेक्स्ट टाइम प्लान करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम तो चाहिए ना हमको, हम सप्लाई कम करने की सोच रहे हैं हम, राइट? सो सप्लाई कम करेंगे तो क्या होगा? आई विल चेक आउट पीपल, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा इकोनॉमी में, राइट? आई विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग मोर, जब मैं प्रोडक्शन कम कर रही हूं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज लो आउटपुट। हम इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, हम क्या करेंगे? और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम कर रहे हैं, मतलब वी आर ब्रिंगिंग डाउन आवर लेवल ऑफ आउटपुट, राइट? अग्रीगेट डिमांड ही नहीं है तो मुझे आउटपुट तो कम करना पड़ेगा, राइट? टू कम इन इक्विलिब्रियम। ओके, now let's see the measures that what can be done guys to control this deficient demand। ठीक है, again two types of policies we have, monetary and physical। जो हमने inflationary gap में पढ़ा उसका just opposite will be here, deflationary gap। डिफ्लेशन आ गया इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट को, बैंक को, सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल ऑपोजिट मेजर्स करने पड़ेंगे, राइट? लेट्स सी दैट। Monetary policies, decrease the bank rate। सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को पैसे लेंड करता है, डिक्रीज करो। अगर कम पैसे में कमर्शियल बैंक्स आर गेटिंग मनी, व्हाट विल हैपन? दे विल डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स फॉर यू। आप डिक्रीज इंटरेस्ट रेट देख के बहुत खुश हो जाओगे, यू विल स्टार्ट टेकिंग लोन एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, राइट? डिमांड क्रिएट करोगे आप।
सेम रेपो रेट। बैंक, कमर्शियल बैंक क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक विल रिसीव इन मनी एट अ लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक। आपको भी वो लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी देगा, आप खुश हो जाओगे, राइट। अगेन डिफरेंस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। Decrease in reverse repo rate. Reverse repo rate is the rate at which commercial banks put money in RBI. ठीक है, अब RBI ने क्या बोला, RBI ने बोला कि मैं अब कम पैसे दूंगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट मेरा अब कम हो गया। तो कमर्शियल बैंक क्या बोलेगा, बोलेगा ओहो कौन डाले RBI के पास पैसे, मैं पूरे पैसे लोन में दे दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोन ज़्यादा देने लगोगे पब्लिक को, मनी सप्लाई बढ़ेगा इकोनॉमी में, अग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। डिक्रीज इन योर कैश रिजर्व रेशो। आरबीआई ने बोला कि ठीक है, थोड़े जितना आपके पास मनी एंड टाइम डिपॉजिट्स आते हैं थोड़ा कम पोर्शन मेरे पास रखो, एक्स्ट्रा लोन बांटो, राइट, मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में। डिक्रीज इन योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये अगेन दिस इज द मनी दैट द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विथ देमसेल्फ, हमारे जो डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट होता है उसका पार्ट, अब ये कम हो गया। अब मैं बोल रही हूँ आप अगर 100 आपके पास डिपॉजिट आया है, यू कैन कीप 5 विथ यू एंड प्लीज गिव अवे 95। इन्फ्लेशन में हमने क्या किया था, इसको 30 कर दिया था, तो मतलब लोन सिर्फ 70 जा रहा था, अब 95 जा रहा है इकोनॉमी में। मनी सप्लाई इन इकोनॉमी विल इंक्रीज, तो हमारा डिफ्लेशन कम होगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, राइट। नाउ लेट्स सी क्वालिटेटिव क्या हो सकता है। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी आरबीआई ने, बोला अच्छा आपकी 1 करोड़ की लैंड है, ठीक है मैं आपको कितना 98 लाख लोन दे देता हूँ, राइट। मार्जिन क्या करा, 2% कर दिया, कम कर दिया। पहले मैंने मार्जिन कितना रखा था, 20 रखा था, राइट, मार्जिन मैंने कम कर दिया। अब पीपल आर हैप्पी कि ठीक है मुझे तो ज़्यादा लोन मिल रहा है, मेरी वट एवर सिक्योरिटी आई एम कीपिंग, वट एवर कोलैटरल आई एम कीपिंग, so people will start taking loan, will motivate them more. Moral suasion बोलेगा कि ओके ठीक है अब सबको लोन बांटो, प्लीज यू हैव टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जिसको लोन चाहिए सबको दे दो, राइट। मॉरली लेटर्स स्पीचेस से बोलेगा आरबीआई। इंट्रोड्यूस क्रेडिट रैशनिंग, ये क्या करेगा, कम कर देगा, राइट। क्रेडिट रैशनिंग को क्या करेगा, कम कर देगा। मतलब कि ओके पहले मैंने बोला था इस सेक्टर को मत दो, उस सेक्टर को मत दो, अब सबको दो, वॉट एवर हुसो एवर विच सेक्टर इज वॉन्टिंग मनी प्लीज गिव अवे, राइट। एंड फिस्कल पॉलिसीज, अब क्या करेंगे गवर्नमेंट, क्या करेगी, गवर्नमेंट विल डिक्रीज द टैक्सेस। डिक्रीज टैक्सेस होएगा तो क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर्स के पास बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, डिक्रीज टैक्सेस या कुछ टैक्सेस बंद भी कर सकते हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर कंज्यूमर की बढ़ जाएगी, पीपल विल स्टार्ट बाइंग थिंग्स, डिमांड बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारी डेफिसिट डिमांड खत्म होगी। एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये जो जी वाला पार्ट है हमारा अग्रीगेट डिमांड का, इसको क्या करना है, गवर्नमेंट को बोलेंगे प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर दो पैसे, और डिफेंस में डालो, इसमें डालो, उसमें डालो, स्पेंड मोर। स्पेंडिंग मोर होगी अगर तो पीपल के पास भी पैसे आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो क्या देगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, उनको पैसे मिलेंगे। वेजेस, लेबरर्स को आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो, ठीक है, सो उनकी क्या बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, राइट। डिक्रीज पब्लिक बोरोइंग, जो पब्लिक से आपने पैसे लिए हुए हैं, पब्लिक डेट लिया हुआ है, उसको डिस्पोज ऑफ करो, गिव मनी बैक टू द इकोनॉमी,
ठीक है, आपने जो बॉन्ड्स इशू करे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो ले लो प्लीज लोगों से। आपने क्या किया था पहले, लोगों से मनी ले लिया था। ये गवर्नमेंट है, ये पीपल है, ठीक। आपने पहले क्या किया था, लोगों से पैसे ले लिए थे और दे क्या दिया था, एक बॉन्ड, ये लो, ये रख लो, राइट। उनके पैसे कम कर दिए थे। अब आपको क्या करना है, उल्टा करना है। अब क्या करोगे, आप उनको पैसे वापस करोगे, डिस्पोजेबल इनकम उनकी बढ़ाओगे और उनसे वापस ले लोगे अपने बॉन्ड्स, राइट। So guys, these were the measures that have to be taken. Okay. So here are some important questions. Let's read them. Discuss the situation when aggregate demand is more than aggregate supply at full level of employment. Next question. Define deflationary gap. ये अगेन आपका मार्क्स पे डिपेंड करता है। 1 मार्क्स का आया बेटा, सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे। ज्यादा मार्क्स का आया तो डायग्राम भी बनाओगे। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक रेट इन करेक्टिंग इट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। स्टफ लाइक दिस विल कम। अब आप बोलते हो कि मैम ये वाला पार्ट तो था नहीं हमारे उसमें, हमने बैंक रेट्स वगैरह तो निकाल दिया था, है ना। बट अगेन कंसेप्चुअल थिंग्स, अगर आप वो नहीं पढ़ते, आपको पॉलिसीज नहीं पता होती, मॉनेटरी पॉलिसीज, क्या आज का लेक्चर हो पाता? कुड यू हैव डन दिस? सिर्फ फिर रटना बच जाता, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आता कंसेप्ट, हमने वीडियोस नहीं किए होते या पढ़ा नहीं होता, तो फिर क्या करोगे? आखिरी में यू जस्ट मग अप ऑल द आंसर्स एंड दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ स्टडिंग, ठीक है। इसलिए जितने डिलीटेड पोर्शन भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, बट इफ यू हैव टाइम प्लीज गो अहेड एंड रीड दोस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe, hit the like button and share it with all your friends. We have our Telegram group guys. ज्वाइन करो ये ग्रुप को. वी टेल यू कि हम किस टाइम पे आते हैं एंड क्या पढ़ाने वाले हैं, and all the new updates about our channel and you will get here. The link is there in the description box just below my video. Let me tell you something about a pro subscription guys that is going on. You get 5000 plus hours of live online teaching, ठीक है। आपको टेस्ट असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस हम आपको कराते हैं। यू गेट कंटिन्यूस रिव्यू, हम आपको रिव्यू करते रहते हैं कि विच सब्जेक्ट यू आर लैगिंग बिहाइंड अ बिट, ठीक है। तो अभी से इम्प्रूव करोगे तो रिजल्ट्स तो इम्प्रूव होंगे ही. You have a pool of 20 plus teachers guys at Vedantu Commerce, so go ahead and learn from their experience. When you take Pro subscription, you have an option to learn in English or in Hindi also. Then when you take the subscription, you automatically get enrolled to the micro and the crash courses that are going on at the moment. So right now guys, we have a 50% off. ठीक है, अभी 50% ऑफ चल रहा है. दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. 1 month पैकेज अराउंड 1800 में आपने मिल जाना है. 3 months 5000 रुपीज में यू विल गेट इट. सो 4 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे 1800 में फॉर 1 full month. Where else will you get this subscription guys? And how will you get the discount? You will get the discount when you apply the code NR Pro. आप NR Pro डालो, you will automatically get the discount. Link will be there in the description box just below my video. Go to the link, put I have a coupon code. Coupon code में NR Pro and you will get the discount. Okay? So stay tuned guys till the next session and wish you all a Merry Christmas and a very Happy New Year. See you guys. See you next session. Till then, bye bye.